Today's topic is database connectivity. That means we are going to learn how to import or export data between data frames and MySQL. So first topic, transferring data between data frames and MySQL. For this, you must download some packages for MySQL connectivity. So install MySQL connector or PyMySQL packages by giving the following commands. C path. This is the path of your Python जो initially बहुत शुरू में मैंने आपको बताया था, और उसी समय MySQL का कनेक्टर भी आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया था। अगर नहीं किया था तो आप पाइथन की जो शुरू की पहली वीडियो है वो एक बार और देख लेना। Otherwise, what you have to do, write pip install mysql connector python और write pip install pymysql, दोनों में से कोई एक आप इंस्टॉल कर लेना। After this only you will be able to do database connectivity. इसके बिना database connectivity नहीं हो पाएगी। Import data from MySQL to data frame. इसका मतलब MySQL में मान लो एक टेबल है, उसका डेटा आपको पाइथन के किसी डेटा फ्रेम में स्टोर करना है। जैसे कल हमने किया था MS Excel टेबल का डेटा MySQL में CSV फाइल के थ्रू। Let us see these steps. First step is start Python and import the packages required for database connectivity. Then second is open a connection to database. Third, execute SQL command and fetch rows into a data frame. Fourth is process as desired. Fifth is close the connection. So these are basic steps to import data from MySQL to a data frame. Let us see these steps one by one. Step number 1. Import the required libraries. That means start your Python, start your new file, and then write these two lines. Import pandas as PD and import mysql.connector as SQL connector. You can write any name XYZ, but normally we use SQL.tor. Next step, open a connection to MySQL database. Set up a connection to a MySQL database using connect function. See the syntax. Connection object, which can be anything like ABC, is equal to MySQL dot connector dot connect. Then we have few attributes. Host is equal to host name. User is equal to username. PASSWD to give a password, and database is equal to DB name. See, this database is written in square brackets. It means this attribute is optional. It is not necessary to provide name of a database, but we should. Let us see example. See this example. Database connectivity of Python with MySQL. Import pandas as PD. Then see this line. Import mysql.connector as SQL.tor. This is a new line for you. So mysql.connector
library or package provides functions for database connectivity. इसके बिना database connectivity आप नहीं कर पाएंगे. So this is a compulsory line. You must include all these lines जो आपके सामने हैं, all these lines in each and every database connectivity program. So these two lines are important. Import pandas as PD, import mysql.connector as SQL TOR. Focus on this line. mycon is equal to SQL TOR dot connect. Host is equal to local host. ये हमेशा आपको लिखना है, host is equal to local host. Because when you are working on your laptop or on your computer system at home, that will be your local host only. तो उसका एक नाम है local host. स्पेलिंग चेक कर लेना, स्पेस नहीं होना चाहिए लोकल होस्ट के बीच में, अदरवाइज एरर आएगा. देन यू हैव टू प्रोवाइड यूजर. भाई यूजर तो बताओगे ना. MySQL में अगर आपको याद हो, यूजर हम देते थे शुरू में जब इंस्टॉल करते थे, रूट, ROOT. सो यूजर इज रूट और MySQL का होस्ट है लोकल होस्ट. यूजर है आपका रूट, डबल कोट्स में देना है और कुछ नहीं देना, जो बता रहा हूं एज इट इज है. PASSWD लिखोगे गलत हो जाएगा. PASSWD टू प्रोवाइड पासवर्ड, और पासवर्ड है VDJS. अब आपको याद आ रहा होगा कि जब हम MySQL इंस्टॉल करते थे, जब भी मैंने आपको बताया, आई टोल्ड यू ऑलवेज गिव अ पासवर्ड विच इज इजी टू लर्न, आइदर ABCD और VDJS. कई सालों से मैं VDJS पासवर्ड ही लेकर के चल रहा हूँ, इसलिए ये एक स्टैंडर्ड बन गया है. तो यू कैन राइट पासवर्ड इज इक्वल टू व्हाटएवर. पर जो भी आप पासवर्ड लिखोगे, प्रॉब्लम क्या आती है, सपोज आपने अपने घर के कंप्यूटर में कोई पासवर्ड दिया ABCXYZ, और फिर वो अगर सॉफ्टवेयर हम कहीं और चलाते हैं या मैं स्कूल में किसी कंप्यूटर में चलाता हूँ, वहां MySQL में पासवर्ड कुछ और है तो मैच नहीं करेगा. तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं इससे रिलेटेड, उन सभी में फिर पासवर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा. दैट इज व्हाई मेक अ स्टैंडर्ड, टेक पासवर्ड एज VDJS. डेटाबेस इज इक्वल टू स्कूल. जस्ट फॉर दिस एग्जांपल, ये कोई भी डेटाबेस हो सकता है जिसमें आप काम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट फॉर पेट्रोल पंप, देन यू कैन राइट डेटाबेस इज इक्वल टू पेट्रोल पंप. नेक्स्ट, if we are checking connectivity here, if mycon dot is underscore connected, अभी इज से समझ में आ गया होगा कि इट इज आस्किंग अ क्वेश्चन, इंटेरोगेशन है, तो आंसर दो ही होंगे, यस और नो. इफ इट इज कनेक्टेड यानी कि ट्रू हो गया, तो ट्रू के केस में हमने प्रिंट करा दिया सिंपली प्रिंट सक्सेसफुली कनेक्टेड. दैट्स इट. सो दिस प्रोग्राम इज जस्ट टू चेक कनेक्टिविटी, और कुछ काम नहीं कर रहा है. बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है, इसलिए ऐसा किया. कोई प्रोग्रामिंग नहीं हो रही, हम किसी भी टेबल को फिलहाल यूज नहीं कर रहे हैं. सो व्हेन वी रन दिस प्रोग्राम, सी द आउटपुट. हियर इट इज रिटन सक्सेसफुली कनेक्टेड. ये वाला मैसेज यहाँ पे आ गया. आप इसको रन कराइए, प्रॉपरली रन होगा और तुरंत आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा, सक्सेसफुली कनेक्टेड. नाउ लेट अस सी दीस टू बॉक्सेस. डेटाबेस कनेक्शन ऑब्जेक्ट, database connection object. This is your database connection object, mycon. A database connection object controls the connection to the database. It represents a unique session with a database connected from within a script or a program. तो ये आपका प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम के थ्रू MySQL को जोड़ा गया. See, यहाँ दिस इज MySQL ब्लैक स्क्रीन जो है, एंड दिस इज योर पाइथन. इन दोनों को हमने जोड़ दिया. वी हैव मेड कनेक्शन बिटवीन दीज टू सॉफ्टवेयर्स. ऐसे एरो से मैं कनेक्शन बता रहा हूँ यूजिंग mycon connection object. See next blue box, is underscore connected function. This one, it is used to check whether the connection is successful or not. बहुत सिंपल था. ये जो लाइन है आपकी mycon वाली, ये एक लाइन है. ये थोड़ा सा आपको
अजीब लग रहा होगा, स्टिल लेट अस सी वंस अगेन। लेट मी फर्स्ट शो यू प्रीवियस स्लाइड। यहाँ देखिए माइकॉन जो था वो यहाँ लिखा गया था कनेक्शन ऑब्जेक्ट माइकॉन था, और माइस्क्ल कनेक्टर डॉट कनेक्ट होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट लिखा था यहाँ पर। यूजर इज इक्वल टू यूजर नेम जैसे कि रूट, पासवर्ड इज इक्वल टू VDJS, डेटाबेस इज इक्वल टू स्कूल। सो इट्स वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टेप नंबर 3, execute SQL statement and import rows in a data frame। अब आपने कनेक्टिविटी तो कर ली। आफ्टर कनेक्टिविटी व्हाट यू वांट टू डू, अब आपको MySQL की क्वेरीज रन करानी है। सपोज आपको टेबल का सारा डेटा डिस्प्ले कराना है तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP और जो भी टेबल का नाम है वो देना पड़ेगा ना। सो स्टेप नंबर 3 is to execute SQL statements and import rows in a data frame. Let us see how to do this. So once the connection is established, read data from a table into data frame using this function read underscore SQL. Syntax देख लो एक बार। df is equal to pandas जिसकी जगह हम pd लिखेंगे dot read underscore SQL, और यहाँ पर कोई SQL statement आएगा and connection name is compulsory। see next, यहाँ देखो इसको ध्यान से। database connectivity of Python with MySQL, import pandas as pd, import mysql.connector as sql.tor, वही सेम लाइंस आ रही है। mycon is equal to sql.tor.connect, होस्ट हमने दिया लोकल होस्ट क्योंकि MySQL का लोकल होस्ट जो होस्ट है वो लोकल होस्ट ही आएगा। यूजर रूट, पासवर्ड VDJS, डेटाबेस स्कूल। आपके कंप्यूटर में जो डेटाबेस होगा वो लेके चलना। ये वाला कोड मान लो आपने लिखा वो नहीं चला, उसके पीछे रीजन ये होगा कि हो सकता है स्कूल नाम का डेटाबेस आपके कंप्यूटर में हो ही नहीं। ठीक है, ओके। इफ mycon डॉट इज कनेक्टेड कॉलन, अगर ये ट्रू है तो कुछ काम करना है, वी हैव डन सम वर्क। अगर फॉल्स है तो एल्स वाला स्टेटमेंट रन होगा, प्रिंट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम नाम का मैसेज स्क्रीन पर आ जाएगा। अगर सब कुछ ठीक है यानी कि कनेक्शन हो गया, तो हमने यहाँ पे दो काम किए हैं। df इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर SQL, यहाँ देखिए एक SQL क्वेरी मेंशन करी है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन, सेमीकोलन इज कंपलसरी, ये लगाना है जरूर। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन, यहाँ हमने एक क्वेरी दे दी mycon। now you must know that student table is there। अगर मान लो स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई नहीं रखी है तो ये काम ही नहीं करेगा। सी एट द बॉटम, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट करके मैंने पहले चेक किया था अपने कंप्यूटर में, ऑलरेडी इट कंटेन्ड 2 रोज, राजेश और रजनीश, ये पहले से बनी हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कनेक्टिविटी वाला प्रोग्राम करना है तो MySQL के अंदर एक डेटाबेस होना चाहिए और एक टेबल होनी चाहिए, उस टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स होने चाहिए। नाउ प्रिंट df, तो इससे ऑटोमेटिकली df क्रिएट हो जाएगा। df मीन्स डेटा फ्रेम, और उसको हमने डिस्प्ले कराया। सी दिस आउटपुट, ये ब्लू कलर में जो आ रहा है, रोल R नंबर 1 2, इसके ये इंडेक्सेस हैं, ऑटोमेटिकली 0 1 आ गए। R नंबर, S नेम, राज और रजनीश, फीस 400, सब कुछ आ गया। सो व्हाट वी हैव डन, we have imported data from MySQL into Python। हो गई ना कनेक्टिविटी, और उसका एक यूज आपके सामने है। दिस इज द बेनिफिट। अब df के अंदर आपका डेटा आ गया, अब आप जो मर्जी करो इसमें,
ये है कनेक्टिविटी का यूज। भाई रियल लाइफ में जो भी यूजर काम करता है वो फ्रंट एंड में काम करता है, डेटाबेस के अंदर जाके काम नहीं करता कभी भी। उसके सामने तो इजी सी चीजें आनी चाहिए, क्लिक किया काम हो गया, चेंजेस किए काम हो गया। फॉर एग्जांपल नाउ इफ यू वांट टू इंक्रीज द फीस, तो आप इसी प्रोग्राम में फीस इंक्रीज करोगे, पाइथन के प्रोग्राम में। मान लो आपने 400 की जगह 500 कर दी, फीस इंक्रीज हो गई। नाउ द प्रॉब्लम इज, वो जो फीस आपने प्रोग्राम में चेंज करी, क्या वो माई एसक्यूएल में चेंज हो जाएगी? नहीं होगी, वहां पे 400 ही रहेगी। फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू डू सम कोडिंग, इसको बोलते हैं अपडेट करना, जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। Now I have one more example for you. This will be your last example after two steps. Step number 4, proceed as required. Once data frame is loaded with data, process it and use the data as per requirement. जैसे मैंने आपको बताया कि फीस आपको इंक्रीज करनी है। For example, you might need to print top or bottom rows of it, or to display a specific row, for example searching, or column, or apply some function, etc. कोई भी काम करना है तो ये step 4 में आएगा। Next, step number 5, close the connection. So after you have done all the processings, you have to close the connection. Just write mycon.close as the last line of your coding. बस ये लिखना होता है आपको, mycon.close। इससे होगा क्या? इससे जो भी आपकी मेमोरी कनेक्टिविटी के दौरान यूज हो रही थी वो फ्री हो जाएगी, और फ्री करना जरूरी होता है। ओके, सी लास्ट एग्जांपल, then we will finish this session. Write a program to read data from MySQL table EMP, which is in database school. Display only those employees whose salary is greater than 2000. EMP नाम की टेबल ऑलरेडी स्कूल नाम के डेटाबेस में बनी हुई है मेरे कंप्यूटर में, तभी ये काम करेगा। ठीक है, तो what we have to do, we have to display only, or we have to retrieve, we have to import only that data in which salary is greater than 2000. See these three lines are same as it is. If mycon dot is connected, यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं वो लिखना है, यानी कि प्रोसेसिंग क्वेरी इज इक्वल टू। अब क्वेरी पीछे हमने यहाँ पे दी थी रीड एसक्यूएल के अंदर, बट दिस क्वेरी इज लिटिल लॉन्गर, मतलब इसकी जो लेंथ है वो आगे तक जा रही है, तो मेरा कोड फिर एक लाइन बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए मैंने क्या किया, क्वेरी नाम का एक वेरिएबल लेकर के उसके अंदर स्ट्रिंग को स्टोर करा दिया। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स। सेलेक्ट a string from EMP where sal greater than 2000 सेमीकोलन, यहाँ सेमीकोलन लगाना जरूरी है। सेल ऑलरेडी टेबल में मैंने चेक किया था, सैलरी नहीं है, सेल है, तो दिस स्पेलिंग शुड बी सेम as the spelling in MySQL table. Then df is equal to pd.read underscore SQL और query comma mycon, print df। देखिए आपका डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया एंड दिस इज योर आउटपुट। EMP नंबर, ename, जॉब, MGR, head date, चेक सैलरीज, बहुत सारे थे, उसमें सिर्फ उनकी सैलरीज, उन्हीं का डेटा आया है जिनकी सैलरी 2000 से ज्यादा है। यू कैन चेक इट। सो दिस वाज अ क्वेरी यूजिंग डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये सारा काम MySQL वाला हम कहाँ पर कर रहे हैं? पाइथन के अंदर। हम MySQL में नहीं कर रहे, ये सारा काम पाइथन के अंदर कर रहे हैं। तो वी आर इंपोर्टिंग डेटा इन डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।